Hare Krishna. Rajarsinam janayita Sastachotpata gaminam Nigrahita kaleresa Guru dharmasya karana Rajarsinam Sastachotpata gamina Nigrahita kaleresa Dharmasya karana Rajarsinam janayita Sastachotpata gamina Nigrahita kaleresa Dharmasya karana Rajarshina janita Rajarshina Rotpatha Gamina Gita Kaleresha Dharmasya Karana Rajarishinam janayita Sachotpathagamina Gita Kaleresha Dharmasya Karana Rajarsinam janayita Sastachotpata gamina Nigrahita kaleresa Dharmasya karana Rajarsinam janayita Sastachotpata gamina Nigrahita kaleresa Dharmasya karana Rajarsinam janayita Sastachotpata gamina Nigrahita kaleresa Dharmasya karana Mataji, Rajarsinam janayita Sastachotpata gamina Nigrahita kaleresa Dharmasya karana. What word meaning? Rajarishina, of kings as good as sages. Janayita, producer. Sasta, chastiser. Cha, and Utpadagamina, of the upstarts. Nigrahita, monster. Kali,
Kalehe. Of the quarrelsome. Yesah. This. Bhuva. Of the world. Dharmasya. Of religion. Karana. On account of. Translation purported by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Translation. This child will be the author of kings who will be like sages. For world peace and for the sake of religion, he will be the chastiser of the upstarts and the quarrelsome. Purport. The wisest man in the world is a devotee of the Lord. Sages are called wise men, and there are different types of wise men for different branches of knowledge. Unless, therefore, the king or the head of the state is the wisest man, he cannot control all types of wise men in the state. In the line of royal succession in the family of Maharaja Yudhishthira, all the kings without exception were the wisest men of their times, and so also it is foretold about Maharaja Parikshit and his son Maharaja Janamejaya, who was yet to be born. Such wise kings can become chastisers of upstarts and uprooters of Kali or quarrelsome elements. As will be clear, kill the personified Kali who was attempting to kill a cow, the emblem of peace and religion. The symptoms of Kali are 1. Wine, 2. Women, 3. Gambling, and 4. Slaughterhouses. Wise rulers of all states should take lessons from Maharaja Parikshit in how to maintain peace and morality by subduing the upstarts and quarrelsome people who indulge in wine, illicit connection with women, gambling, and meat eating, supplied by regularly maintained slaughterhouses. In this age of Kali, regular license is issued for maintaining all of these different departments of quarrel. So how can they expect peace and morality in the state? The state becoming wiser by devotion to the Lord, by chastising the breaker of discipline, and by uprooting the symptoms of quarrel as mentioned above. If we want blazing fire, we must use dry fuel. Blazing fire and moist fuel go ill together. Peace and morality can prosper only by the principles of Maharaja Parikshit and his followers. Hare Krishna. Anyway, Allah was after your problem. Allah, your mind is to the Allah of Muhammad. Is your army to the Dharma के your Malayali Malayali who didn't come to the ताकि इस इंसान के विकास की भगवान का इसके वालों कन्या वालों की खिलाते हैं और ज्ञान की सामाओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रज्ञावान की होते हैं अगर जब तक राजा किसी राज्य का आगे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा तब तक वो राज्य के लिए सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को बसे ही मानव विश्व के उनकी भारत से सारे गांधा उनकी अपवाद के अपने गांव के समाज सक्षम व्यक्ति थे और ऐसी ही भविष्यवाणी भारत ना उनके होने वाले महान जंगली के विषय में की कहानी ऐसे प्रज्ञावान आज्ञा ही विज्ञापन को लग लेने वाले तथा कई अर्थात यार सपनाओं के इच्छा पर जैसा कि अन्य बहुत से हुए हैं हमारा की मांग सभी बाला हम करना चाहिए क्योंकि वो समय का धर्म का उनकी गाय को नामी का जन्म कर रहा उनके लक्षण है हम ईश्वर स्त्री ईश्वर युग नाम उन्होंने चौथा प्रसाई समस्त प्राणियों मनुष्यों के विद्वान संस्कृति की शैली के लिए माना से इतना प्रमुख है कि किस तरह पूर्ण भगवान
तो उद्यमों के प्रमुख मनुष्य के सामने आध्यात्मिक रास्ते रखी जाती है जो सुरा सुंदरी रूप का नियमित रूप से चलाए जा रहे रूप से विद्यमान संस्कृतियों करते हैं इस कार्यों में अलग उत्पन्न करने वाले जो विभिन्न विभागों को चालू करने के लिए लाइसेंस किए जाते हैं ऐसे मामले में आध्यात्मिक शास्त्री अनुसार इस तरह की जा सकती है अगर राज्य के गुणों को भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को ठीक करने वालों को अभी वह बदलने के लक्ष्यों का उपयोग करके जरूर होने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ये तो प्रॉब्लम कभी खाते हैं पूरे ईंधन का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति का भी इतना धीरे ईंधन का उपयोग नहीं हो शांति तथा धैर्य का वही हो सकती है जहाँ महाराज परीक्षित तथा अन्यायों के सिद्धांतों का पालन होता है ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन श्री चैतन्य शीतम स्थापितं येन तदेव स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदाति वन्दे श्री गुरुं श्रीपदापदं श्री ओम वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सगसना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादां सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्णा करुणा दीनबन्धो जगत्पते रूपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषता शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा. Once again, we welcome all the assembled devotees for today's satsang. Today is very auspicious day. We have today is the Ekadasi day, Panna Ekadasi day, and today is the disappearance day of Naragari Sarakara Thakura disappearance day. And yesterday we celebrated the Vyas Puja of our His Holiness Radhanath Swami Maharaj. So we have very vital subject. So this chapter, these weeks, we are discussing about the birth of Emperor Parikshit, especially when Maharaja Yudhishthira doing all purificatory ceremonies, he is asking Brahmanas, how would this child will be in future? What is this? Whether he will represent this dynasties? These questions he is asking to the Brahmanas. So the Brahmanas, they are giving about the how Maharaj Parikshit will be. So they are foretolding, as actually like astrologer doing the same way. The Brahmanas are predicting the future of Maharaj Parikshit. So
उसको एक राजन पूछा है राम से बात पूरे कर रहे हैं दोनों राजा से जिज्ञासा की थी जो श्रीमद् भागवतम की धर्म ज्ञान सर्वज्ञ तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के तारक थे और जब ये श्रवण किया कि इसको सुनाया गया और कृष्ण इसको बोला उनके बारे में और इसीलिए अब खुद को जानने का बड़ी करने की बात करता और और ये बता रहे ऐसे पहले हुआ उनके जो पितामह महाराज लक्ष्मी जिसमें गुड़ाई कर रहे थे कुछ पश्चात के बाद में उन्होंने क्या किया करके और लेने संस्कार जो रहे हुए संस्कार के माध्यम से उनके सब संस्कार और सभी का आलोचना कैसा नहीं कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि भगवान की शक्ति जिससे कि सब लोग वो भी जानना चाहते हैं तो उनका पैसा ऐसा जो इसी जिज्ञासा से वो ब्राह्मणों से खुशी करते हैं और उनके बारे में और सक्षम बता रहे हैं। So in text 16, the Brahmana said, this spotless sun has been restored by the all-powerful and all-pervasive Lord Vishnu, the personality of Godhead, in order to oblige you. He was saved when he was doomed to be destroyed by an irresistible supernatural weapon. आप पर अनुग्रह करने की सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी मान विष्णु के द्वारा बचाए। So further they are continuing. For this reason, this child will be well known in the world as one who is protected by the personality of Godhead. O most fortunate one, there is no doubt about that. This child will become a first-class devotee and will be qualified with all good qualities. यानी कि इसी कारण यह बालक संसार में विष्णु का भगवान की द्वारा नाम से विख्यात होगा। ये महाभाग्यशाली इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुण से। So after hearing this, again Maharaj Yudhishthira is asking that, O great soul, will he become as saintly as a king, as pious in his very name, and as famous and glorified in his achievements as others who appeared in this great royal family? ना सुनने को ऐसे बहुत ही क्या पूछना है महाराज ने पूछा तो राजा महाराज ने पूछा ये महात्मा क्या यह बालक इस महान राजवंश के अन्य राजाओं की तरह राजर्षि बहुत नाम वाला इतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? So the Brahmanas, they gave first brief. Now they are expanding. How is a good devotee? They are comparing and they are telling, how Maharaja Parikshit with, imbibe the qualities of great personalities in the history. So they are continuing. They are saying, "O son of Pritha, this child shall be exactly like King Iksavaku, son of Manu, maintaining all those who are born. And as far as following the Brahmanical principles, especially being true to his promise, he shall be exactly like Rama, the personality of Godhead, the son of Maharaja Dasaratha." विद्वान ब्राह्मण एक यह बालक राजा इक्ष्वाकु की तरह नियमों का पालन करने वाला और वो उनके अलग अलग गुणों का पूर्ववर्ती काल में हुए महान
को या भगवान के कुछ घोड़ों से और जहां तक ब्राह्मणी सिद्धांतों की बात है, विशेष रूप से अपने उसे का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम के प्रति होगा। So in the next, he is comparing, he is telling, amongst great bowmen, this child will be as good as Arjuna. He will be irresistible as fire and as unsurpassable as the ocean. और फिर आगे कहते हैं Text number 21. और ये धनुर्धरों में बालक समान होंगे और अपने देव के समान तुम निर्वाह। So Prabhupada writes, there are in the history there are two Arjunas. One is Kartiyaviri Arjuna, the king of Kaya. The other is the grandfather of the child, like Arjuna. So Maharaj Parikshit is exactly like these great warriors, two great warriors like Arjuna, Pandava Arjuna and Kartaviri Arjuna. जो और उससे जो So in the text 22, the child will be as strong as lion and as worthy a shelter as the Himalaya mountain. He will be forbearing like the earth and as tolerant as his parents. और आगे श्लोक यह बालक सिंह के समान बलशाली होगा, हिमालय के भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा, यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। In the text 23, the child will be like his grandfather Yudhishthira or Brahma in equanimity of mind. He will be munificent like the lord of the Kailasa hill, Shiva, and he will be the resort of everyone like the supreme personality of Godhead Narayana, who is even the shelter of the goddess of fortune. यह बालक मन की समता में ब्रह्मा के समान होगा, ताकि सीता में शिव के समान होगा, यह देवी लक्ष्मी के आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला। So in the text 24, the child will be almost as good as Lord Sri Krishna by following in his footsteps. In magnanimity, he will become as great as King Ranti Deva, and in religion, he will be like Maharaja Yayati. जब बालक भगवान श्री कृष्ण की पालन करते हुए उन्हीं के समान उदारता में राजा रंती देव के समान घर में महाराज ययाति। So the 15th text, this child will be like Bali Maharaja in patience, a staunch devotee of Lord Krishna, like Prahlad Maharaj, a performer of many Aswamedha sacrifices, and a follower of the old and experienced men. So in text 26, today's sloga, the child will be the father of kings who will be like sages. For world peace and for the sake of religion, he will be the chastiser of the uproots and the quarrelsome. विश्व शांति धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों पत्नी कार्यों को खंड करने वाला। So we see
इसी के बल करने से शांति। So now we read about Parikshit Maharaj is comparing with various great personalities just to recollect, test our memory. Like we can say, who are all, comparing this Brahmanas is comparing, like how Parikshit Maharaj will be there. One devotees we can try to recollect what we studied so far. This, after this sloka, it goes about the how Parikshit Maharaj will perform other activities. Here he stops that, the how Maharaj Parikshit will be with the devotees. Any remembrance? Yes. Very nice, very nice. कभी कह रहे हैं कि जैसे कि तुलना की गई या तो भगवान है आपके महान भक्तों या जो सूर्य राजा थे, तो अभी तक जो पढ़े हैं उसमें से कुछ बताइए आपने किसे तुलना की गई हो, वो बता सकते हैं ना? देखो ये बताया कि सहस्त्रवीर बाहु के पास के कार्तिकेय अर्जुन और जो अर्जुन पांडव थे उसी समान में होगा। और कोई बोल? Sunil Krishna Prabhu. Very nice. Very nice. Very nice. Yeah, as munificent as Lord Shiva. Very nice. Very nice. Ram ka. Okay. Very nice. Yes. और कोई नाम आप तुलना की गई? रंती देव और याति और Bali Maharaj. बलि महाराज, Ali Maharaj. प्रहलाद महाराज, Prahlad Maharaj. शिवी महाराज Sibi Maharaj. और किस नाम? Lord Narayana. Lord Narayana. Yes. Devotee of the Lord Narayana. Mother Lakshmi is taking. Yes. Yes. हिमालय Yes. Himalaya, mountain Himalayas, Australia, and like lion. फैंसी And tolerant as his parents. ये माता पिता की रस्सी समाज की है। So even in this age of Kali, but we have some very good memory. So तो कभी कह रहे हैं कि पहले समझ गए बताया गया, लेकिन यहाँ पर इस और में ऐसे लोग हैं जिनकी मति सच्ची right. So Prabhupada starts the purport with a very powerful statement. The wisest man in the world is a devotee of the Lord. भगवान बहुत सुंदर शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लाइक बहुत सुंदर आदमी इस संसार में जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं हम कहेंगे विचक्षण व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बातें वो कौन है? वो भगवान। So can anyone, challenge this statement? How Prabhupada can, there are so many wisest people are there. How Prabhupada can say that devotee is the wisest? Can anyone challenge this one? No, it is not like that. Can anybody challenge? तो क्या कोई चुनौती देना चाहेंगे इस प्रश्न को? यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर इंग्लिश में वाइस तो खाली बुद्धिमत्ता नहीं है, वाइस का मतलब उस वास्तविक ज्ञान जो वास्तविक विषय है। तो क्या इस बात को आप सहमत करें? हम देखते हैं कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर प्रोफेसर ऐसे कह रहे हैं कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो भक्त या बुद्धिमान व्यक्ति वही है। तो क्या बाकी लोग उसमें बुद्धिमान है कि बुद्धिमान ये प्रश्न है संजय बल सकते सबके लिए प्रश्न विचार करिए, कुछ चुनौती इस पर
So, सबको सहमत है? yes, और These are words, Bhagavatam, I was just saying that number. But in the verse it is mentioned, means उस श्लोक में लिखा हुआ है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सबसे चतुर से भी चतुर होते हैं, बुद्धिमान से भी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इस नश्वर शरीर में भी वो उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं जो सबके लिए असंभव। So that's why they are the wisest. wisest. Because of with this material body, they can achieve the highest thing. Highest thing. One verse is the highest. Very nice. excellent point, excellent point. तो ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य जो ये जब कृष्ण वो क्यों ऐसा है। अब देखिए इस बात का बहुत करेंगे एक मिनट के लिए। कि सबसे बड़ा आप बुद्धिमान किसको मानेंगे जो बहुत कम चीज का उपयोग करे, जैसे कोई ₹1 लगा कर और करोड़ रुपए बना, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया और बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करने की उसको। तो भगवान भक्त हैं, ये जो हार्ड मास का जो शरीर जो करने वाला जो मरने वाला मृत लोग, इसी शरीर का उपयोग करके मुझे प्राप्त समझ में आता है। इसलिए वो सब ये जो नश्वर शरीर है, इस नश्वर वस्तु का उपयोग करके और मुझे प्राप्त कर लेते, इसलिए वो सबसे चतुर। Yes. Prabhuji very nicely explained that one. So when we accept the wisest man in the world is a devotee of the Lord, we are accepting this statement is true. It is unchallengeable. One minute. Unchallengeable. Then we need to justify. Like Prabhu justified, Prabhu quoted the Srimad Bhagavatam verse, and in other ways, like how we can justify this word. When we are preaching, when we are telling that, the wisest man in the world is a devotee of the Lord. Maybe here all are devotee. We do not have when we are going out and preaching to the people, when we say this statement, maybe they will come up with various ideas how we can tell this one. They will challenge for them what we can say, how to convince them. It's just for other views, anything is there, we will discuss that one. How we can justify. Yes. यस विवेक जो हमने बताया जिनके पास विजडम जो जानते हैं कि वास्तविक वस्तु कैसे प्राप्त वास्तविक अंतर अंतर बुद्धि और विवेक में अंतर। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत हो सकते हैं, जैसे हमने व्यक्ति ने बताया कि भौतिक की बुद्धि होती है और वो किसी भी चीज का उपयोग करते हैं, लेकिन विवेक ये है कि उनको पता है कि बुद्धि का उपयोग कहाँ पर करना है। दे कैन डिस्क्रिमिनेट। बुद्धि तो है लेकिन डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता है कि कहाँ पर उपयोग करना है, वो विवेक। So how we will justify this statement in any other points? Prabhu said the whole thing, the Bhagavatam. Yes. So Bhagavatam says Sumedha, who chants the name of Lord, he is Sumedha. Okay. He is very, very intelligent. He is very intelligent, very intelligent. 11:29. 11:29. ये सब बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषेण यत् सत्यम वितेनेह मर्त्येन आपनोति मामसत्। So this process is the supreme intelligence of the intelligent and the cleverness of the most clever. For why only one can in this very life make use of the temporary and unreal achieved in the eternal realm. Slogan number 11. 11:29. 29. So this very important point, then we can also refer. Prabhuji mentioned 11:29, 22 Srimad Bhagavatam. We can study refer all the things we can do that. So
Because as Prabhu mentioned, like what is the difference between the intelligence and wisdom? Intelligent person knows the thing, process, everything he knows. The wise is knows where to apply this intelligence, which he has the discriminating power to do the right and wrong thing. The devotees are the wisest man because, as this sloka mentioned, that this human form of life is very, very rare to achieve and it is very short duration. We are all in different ages, like 40 years, 45 years, 50 years, 20, 25. We just look back our life, it looks like just fraction of second, we reach this stage because time is flying like anything. It is not wait for anyone. But within this short duration of time, what makes us to have the right activities? Because we are all every jiva, or like somewhere or other, we are surrendering ourselves to someone, whether to our parents or our wife, husband, our bosses. We are serving them. We to some extent, not even fully, to some extent, we surrender themselves, and then we are carrying out the job many people are doing. But the devotees, they are the wisest, they know whom to surrender and whom to serve. So they are reaping the real benefit, transcendental benefit. All others are reaping benefits, but not a transcendental benefit. That's why Prabhupada started with a very strong word that the devotees are the wisest man in the world. Some books, the additional books, is stopped by the very हर लोग सभी लोग हर कॉल में हम लोग इस किसी के ऊपर आश्रित है और उसके ऊपर क्षमता रखने का जो लेकिन उनको ये याद हो जाता है उनका सवाल हो जाता है कि यदि हमारे परम आश्रय हमारे सुरक्षित होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे इस बात को जान जाते हैं, इस तत्व को जान जाते हैं, इस संबंध को जान जाते हैं। पुणे पर विनती करते हुए इस प्रकार से वहां पर अपने वियोग को लगाते हैं कि ये हमें करना होगा था। हमारी शरणागति वो बिल्कुल अनन्य भाव से वो इसीलिए वो इस पर Chaitanya says about. Yes, yes. Very nice. तो कई श्लोक हैं बताया गया कि सच में ज्ञानवान कौन है जो समझ जाते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति। तो बहुत जगहों के पश्चात जो वास्तविक ज्ञानवान है वो समझ पाते हैं कि भगवान वासुदेव सभी कारणों के कारण हैं और हमें उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। So the Prabhupada further writes, the sage are called wise men, and there are different types of wise men for different branches of knowledge. Unless, therefore, the king or the head of the state is the wisest man, he cannot control all types of wise men in the state. So this is very, very important statement. Prabhupada is saying, even if you are a family, head of the family, we have to be wise, then only we can able to direct our dependence in the right direction. If we ourselves is not knowing the things, what we need to do, what we do not do, then directing our family is very difficult. Then they will come up with various ideas we cannot able to control. देखिए परिवार में
उन्हीं को अपने परिवार को और जब वही अल्लाह ने कोई व्यक्ति पूरा परिवार क्योंकि फिर जो लोग अपने विचार लेके आपको कहेंगे आप कहाँ करने जाएंगे नहीं करेंगे और सब लोग अपने विचार भाग लेकिन अगर सही फैसला होगी है जब तक राजा या किसी राजा का या परिवार का अध्यक्ष अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति नहीं है तब तक वह राज्य तब तक सब लोग अपने इसलिए सार्थक शरीर करा अपने आप को सही करना होगा अपने आप को तभी हम अपने ऊपर निर्भर लोगों को So, in the line of royals, Yes. Corporate world, they say tone at the top. So when the CEO is good, automatically that cascades down. very तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आज कंपनी में भी सब बताया जाता है corporate world कि जो सबसे ऊपर बैठे हैं कंपनी में उनकी जैसी विचारधारा होगी वही नीचे तक जाएगी नीचे के लोग भी उसी प्रकार से काम करेंगे Let's say that. so like that, similarly, there is a saying that the CEO single-handedly cannot bring the company prosper and success, but he can able to destroy single-handedly. प्रभु जी कह रहे हैं कि कोई मुखिया हो वो अकेले सबको बना नहीं सकता कंपनी का लेकिन वो अकेले पूरी कंपनी को धराशायी कर रहे So same is applicable to our family also. The family head, with the support of all, they can grow nicely. If he is not perfect on this thing, then he can destroy the whole dependence. Similarly, Prabhupada mentioned that the royal succession, because the king must be a wisest person, so that he can able to. Because in the kingdom there are many wise persons are available in different subject matters. The king who is heading is not a wise person. He will be misled, and then everything will be spoiled. So Prabhupada writes, in the line of royal succession in the family of Maharaja Yudhishthira, all the kings without exception were the wisest men of their time, and so also it is foretold about Maharaja Parikshit and his son Maharaja Janamejaya. They are foretold because this time they are not there, but they are telling who was yet to be born. Such wise kings can become champions of God and upholders of value or words of elements. ऐसे कुछ मानती जाती है महाराज रक्षित उनके होने वाले को बातें बताया उनके होने वाले को जो महाराज जन्म लिए हमारे जन्म के We have Janamejaya. ऐसे So I heard a lecture from Bhakti Swami Maharaj in this particular verse. Maharaj is saying that the king, must have the powers to control the undesired elements. At the same time, he
he should be wise, how much force can be applied. Like Maharaj gave some recent examples, how they are killing in the war and other things. How much we have to apply. So in this regard, we also heard that after the Kurukshetra war, Krishna withdraw the powers of Arjuna, because once the war is over, it is not necessary. So the Lord, in one sense, the Lord is giving the energy, the force, everything. The provider is the Lord, but He will give and He will. जब वो कहते हैं दर्शन को कि 4 हो गया और ये सुग्रीव सुग्रीव जो है वो भोग विलास कर रहे हैं, जब उसको बताओ उससे वादा किया था पिता को रोकने में मदद करेंगे, तो लक्ष्मण तुरंत तैयार होते हैं चोट की आप पश्चात कर करेंगे। तो वहां पर भगवान बाकी ने बताया कि हमारा कुछ बोलने आराम से आप जान करके उनको किस प्रकार से बोलना है, जो बोलना भी है वो किस प्रकार से और कितना उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस समय कुछ भी होता है तो क्या करते हैं, देश से लोग अलग हो वसूल करो और मासूम लोग मारे जाए, ये आ जाएगा। अच्छा बेटे जो चीजें बहन की बात हो सकती है यहाँ पर इसको अवॉइड किया जाए, मासूम ये मुझे कितने शब्द Prabhupada continue. As will be clear in the chapters ahead, Maharaj Parikshit wanted to kill the personified Kali, who certainly killed a cow, the emblem of peace and religion. The symptoms of Kali are wine, mud, gambling, slaughterhouses. Wise rulers of all states should take lessons from Maharaj Parikshit in how to maintain peace and morality by subduing the upstarts and burdensome people who indulge in wine, illicit connections with women, gambling, and meat eating supplied by regularly maintained slaughterhouse. Very wonderfully, Prabhupada is giving this point. So, this is the formula, peace formula, morality formula. If anyone follows, either in the family or in the state or in the whole world, United Nations, simply follow this thing, you will attain the peace and morality of the state. If you are not following this and trying to do so many things, so many conferences, making this, many things, nothing will happen. We see in our state, now Prabhupada is writing that the government is giving license for all these things to do these activities, these illicit activities, and then the government is expecting the community should be peaceful and has a morality. The government itself is not having. How it will be possible? The revenue of the government is more highly dependent on the revenue of the intoxication. This liquor business, government business, government producers, and making money. Yes, one by one tree, like that. In a government is making money. They say that without this money, government cannot run. Like that, they are putting the situations, and most of this business are owned by the leaders of the government. Then how will be the situation? I'm not
pointing out any government, but you can check in any state, this will be the same thing. तो ये बहुत ही very serious है। ऐसे पर्यावरण उन मर्यादा करने वाले शामिल होने का इसलिए जो मिलने वाले इस कलयुग में करने वाले विभागों को चालू करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। तो ऐसे राज्य में शांति का भी आशा की सकता है। बहुत सुंदर बात है। और आपको सुन के आपको कोई बता अभी हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी, तो वहां पर भी जहाँ हम रुके थे तो सामने ही लाइसेंस मतलब वो सरकारी शराब की दुकान था। क्या सरकार की कितना है उस मामले में हमारी लोग बताते हैं 20 मीटर की कोई आपको ऐसा जिसे तो मैं माफी छोड़ेगा हम सब लेकिन हमारे किसी भी बात चाहिए वहां पर सरकार पहुंचे कि हमारे राष्ट्र के यहाँ तो लोग यहाँ पर कौन आने वाले लेकिन वहां लोग भी रहे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का क्यों बिना तो ये साफ किया है जगन्नाथपुरी रामेश्वरम समाचार ऐसे स्थानों को नहीं छोड़ा क्योंकि सरकार ने क्या हम बता रहे हैं कि हमारी सरकार कहती है कि वो उनका पूरा आप याद है कोरोना के बाद सबसे पहले दुकान में है लाइन लगी लोगों उतनी लाइन हॉस्पिटल में नहीं थी और दवा होने की उतनी लाइन लेकर ये स्थिति है हमारे हमारे इसकी बात करते हैं हाँ वही ये स्थिति हमारी ये अंधार तो बात करें कि ऐसे स्थान पर आप कैसे शांति की आप अपेक्षा कर सकते क्योंकि जो शांति का वो जब उनका आपने आशा ज्ञान है कैसे आप शांति और सुख का अनुभव कर सकते संभव नहीं तो बंद करके तो आप बात करते हो कि हम आपको शांति आएंगे आप अपनी अच्छा करेंगे ये मुख से बात करेंगे पहले आप उसके जो मूल कारण है उस पर प्रयास और बच्चे महाराज ऐसा ऐसे लोगों को नहीं दिया ऐसे लोगों को नहीं चाहिए ऐसे लोग बिल्कुल हमारा Prabhupada continues, the state fathers therefore must follow the principles of becoming wiser by devotion to the Lord, by chastising the breaker of discipline, and by uprooting the symptoms of quarrel as mentioned above. If you want blazing fire, you must use dry fuel. Blazing fire and moist fuel go ill together. Peace and morality can prosper only by the principles of Maharaja Parikshit and his followers. See, Prabhupada writing the devotion to the Prabhupada is saying this one. The state fathers, Prabhupada is not saying the leader, the state fathers, how wonderfully you choose the word. The leader has to be
like a father. Now, how a father is carrying children, their dependent. The same way, the leaders, supposed to be the leaders, they should be act like a father. That's what Prabhupada is saying, the state fathers. Nowadays, fathers and we are in a very, very difficult situation. We are in very difficult situation that this illicit things the father is allowing. The father is not caring, like his son is smoking or even his son is drinking. In some cases, father and son together sit and doing all these things. You see how much degraded we are. We are in the situation. But that's why Prabhupada is saying the devotees are the wisest men in the world. Even though the surroundings are filled with wine, woman, gambling, all these things, the devotees are like a lotus. They are not touched by this kind of impurities, these kind of things. That's the reason Prabhupada is saying devotees are the wisest man in the world. आगे मोबाइल आज के जन को रात के जन को अनुशासन को करने वालों को ग्रहण देकर तथा कलम के यदि हम प्रज्वलित अग्नि चाहते थे तो सोने की लकड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि प्रज्वलित शांति तथा निर्भीकता वही पवित्र शक्ति है जहाँ महाराज कृष्ण के द्वारा उनके अनुयायियों वही वस्तु सुख और शांति और राज के जो राजा वो एक पिता की पूरी प्रजा का संतान और इस प्रकार से कैसे उनके परम के बारे में कैसे वो परम उसके लिए क्या क्या Wherever we go in this world, whomever we met, we will not get the right thing. Prabhupada gave this Srimad Bhagavatam and teaching us the right path. He's shown the right path. No, like we say, like don't reinvent the wheel. It's everything is studied, analyzed, proved, and given to us. We have to simply follow the instructions of Srila Prabhupada. Our life will be successful. वहां से हमारे कैसे यहाँ पर भी चल रहा है सोना चाहिए और हमारे विकास हमारे देश के विकास सुंदर वास्तविक वस्तु प्रदान कर सके जो हमें हमारा मनुष्य जीवन की संस्कृति वो भगवान के हमारा गर्व नहीं है सब ये कार्य ये अंतरराष्ट्रीय के अलावा भगवान की वाणी में शक्ति करते हैं ये वाणी के माध्यम से शिक्षा हम सबको उपलब्ध है और जैसे आप लोग सबको बांटिए इस ज्ञान की बड़ी कमी सबको चाहिए
Prabhupada के वो भी sound आपके प्रति से Prabhupada कहते हैं बहुत Prabhupada कहते हैं we are supposed to use our intelligence to control our example. हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए हमारे जो भोग करने वाले मन करता है वो नियंत्रित करें but our problem is that we are habituated to enjoy intelligence. हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए हमारे उस चंचल मन को रोकने के लिए लेकिन हम हमारी आदत पड़ती है कि हम बुद्धि का प्रयोग करके ही आदत कैसे नया आदमी बुद्धि का प्रयोग करें लोग उसको रोकने का है मन को रोकने का है बल्कि कहते और नया आएगा मन को और मन की बात है उसमें मम्मी लगा वेरी नाइस It's very related one. At a lecture, so I gave for a student. I said intelligence is higher than mind. So if you listen to mind, monkey, you become a monkey. तो अगर आप मन की सुनेंगे तो मंकी बन जाए क्योंकि मन जो है मंकी के समान चंचल है ये तो ठीक है आप I just reconnecting one statement is given by some study in the morning. What it says like the Lord give me strength to dominate change and give me courage to change what I can change and give me the wisdom to know that I can change and what I can dominate. So there is the wisdom exactly what Maharaj said. हे भगवान आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए जिसको मैं बोल नहीं सकता उसको मैं सहन करूं और मुझे इतना साहस दीजिए कि जो चेंज करना चाहिए उसको मैं चेंज करूं और इतना विवेक दीजिए कि मुझे क्या सहन करना और क्या मैं करूं तो यहाँ पर वो विवेक इस हमारे is I just I really the wrong back. आपकी बुद्धि का कोई बताया स्वार्थ में बुद्धि आपकी मंद सुमंद मत हो रही और ये रूप रहता है Socrates says, I am the most intelligent person because I know I do not know. जो अधर्म को धर्म मान और जो और तमोगुणी कौन है जो अधर्म को धर्म मान वो तो यहाँ पर किसी कोई जिज्ञासा प्रभु जी यहाँ बड़ा सुंदर रूप से सोच रहा था कि श्रीमद् भागवतम जब प्रातः काल में बंधन करते हैं तो संग में तो एक अलग ही आयाम उसका रहता है मॉर्निंग भागवत क्लास इज ऑलवेज वेरी डिफरेंट देन एनी अदर क्लास व्हाट वी हैव डू शाम को हम लोग चर्चा करते हैं श्रवण करते हैं और जो सुबह जो हम लोग सुनते हैं उसका एक अलग ही आयाम रहता है हमारे स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम डिवोटी लाइक प्रभु जी जो लोग इतने व्यवहारिक रूप से बताते हैं कि पूरे अपने अनुभव के साथ में तो बहुत सुंदर होता है थैंक यू वेरी मच कोई जिज्ञासा वहां से अच्छी बात अंग्रेजी हिंदी सब भाषाओं में रामायण जो है हिंदी जैसा लगता है सब मीनिंग का जरूरत नहीं संस्कृति पढ़ना हाँ तो ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें पूरा हिंदी में है फिर तो
जैसे अवधि में भी बहुत से श्लोक हैं रामचरितमानस में जो हम नहीं समझ पाए। कई श्लोक हैं जिसको समझने के लिए आपको उसको भावानुवाद चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसी कृपा की कि ऐसे महान आचार्य में एक ही ऐसी पुस्तक देखा हूं अभी तक जगत में, पूरी जगत की बात कर रहा हूँ, जहां पर प्रभुपाद जी ने संस्कृत के शब्द अनुवाद दिए हैं और भावानुवाद। ऐसा ही सोचिए आप, हर शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने दिया है। एक शब्द को राजर्ष अभी हमने पढ़ा शब्द अर्थ, उसके बाद इसका अनुवाद हो गया। ठीक, अभी आप पढ़ेंगे भी अवधि में आपको मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ सब लोग आप पढ़ करके खाली उसका लेकर नहीं समझ पाएंगे, बस उसके अंदर तत्व क्या है कुछ समझ के आपको तात्पर्य प्रभुपाद जी ने हर श्लोक के तात्पर्य ये महानाचार्य का तत्व क्या है प्रभुपाद जी किया, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया। इससे प्रभुपाद जी ने कॉन्ट्रीब्यूशन दी। इसलिए भागवतम आप जाएंगे भी, आप जाएंगे भागवतम केवल भागवतम या रामचरितमानस एक पुस्तक है बस। भागवतम भी गीता रामचरितमानस आती है, ऐसी दो पुस्तकें भाग एक भाग दो बस। उसमें सारे श्लोक आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि प्रभुपाद ने इसको 18 वॉल्यूम दिए, 18 वॉल्यूम्स में क्योंकि उनके तात्पर्य तो प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि संस्कृत आपको समझ नहीं पाओगे, ये पढ़ करके उसका मैं अनुवाद भी बता दूं तब भी नहीं समझ पाएंगे उसके अंदर क्या है। भावानुवाद का मतलब उस समय वो आचार्य अब शुद्ध गोस्वामी क्या कर सकता, उस समय वो क्या बोलना चाहता वो समझ पाएंगे केवल दूसरे महान आचार्य के भाव। इसलिए ये शब्दानुवाद नहीं है, ये भावानुवाद। तात्पर्य का मतलब भावानुवाद, उनके भाव क्या है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं क्या भाव है, किस भाव से कह रहे हैं। तो ये श्लोक सारे आपको याद है कि समाधि भाषा में चल रहा है। अब समाधि भाषा के श्लोक को समझ पाएंगे हम लोग, कभी समझना उसमें हमको ऐसे समाधि शब्द चाहिए जो उनको समझ करके हमारे स्तर पे जिस भाषा को हम समझते हैं उस वाली भाषा में उसको अनुवाद करें और उसका हमें तब हम समझ पाए। हाँ, इससे पापा जी की अनुवाद तात्पर्य हमें कहा हाँ, तो पापा जी दिया है। अगर आप गीता का देखेंगे ना तो गीता ज्ञान आपके हमारे पास यहाँ पे शायद नहीं हुआ, तो गोपाल जी ने गीता के सभी श्लोकों को गाया है। वो आप गीता के तो यहाँ पे बंगाली लोग भी हर एक श्लोक आपको मिलेगा, हर एक श्लोक के अंत में गोपाल जी ने गीता ज्ञान हर एक श्लोक का वो तो गा के दिया है बंगाली जो कि अवधि बन जाता है हर एक श्लोक का। लेकिन भागवत में 18 श्लोक उससे गोपाल जी के पास समय नहीं था और गोपाल जी ने दिया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें समझना तात्पर्य। लेकिन तात्पर्य को समझने के कितने लोग रामचरितमानस जो है ऐसे ही जो वाल्मीकि रामायण वो अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाओं में, जैसे कम रामायण तमिल में हो गया, तमिल में है, ऐसे हर भाषाओं में लोगों ने किया। अवधि भाषा में वहां पे समझ यही बात मैं नहीं समझ पाता, अवधि की भाषा कुछ ऐसे श्लोक में नहीं समझ पाता उसके अनुवाद से। अब जैसे ये श्लोक है उसमें अवधि में जो गवार पशुनारी ये सब कारण की अधिकारी। अब इसको कोई अगर लिटरल मीनिंग समझेंगे तो नहीं समझता, इसमें तात्पर्य चाहिए। इस पर विवाद चल रहा है। वो बोल रहे हैं आपने ढोल शूद्र और गवार और स्त्री सबको एक में था और आप बोल रहे हैं कि कारण के अधिकारी कारो क्या मारो, ये लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग। अब इसको आपको चाहिए तात्पर्य की क्या है, ताड़ने का मतलब क्या, ताड़ने का मतलब क्या कारण है, ये समझना पड़ेगा भाव। तो प्रभुपाद जी ऐसे तात्पर्य को हम समझाते हैं, ऐसे श्लोकों को भी समझाते हैं। इसमें बहुत बड़ी प्रभुपाद है। आप सोचिए श्री प्रभुपाद नहीं होते तो क्या हम श्री जैसा बताया क्या हम भावों में प्रवेश कर पाते, जो भावों में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाते। तो संस्कृत देख करके दूर से प्रणाम करते, एक भाव में करते लोग लाल कपड़े में लपेट करके और उसको रखते, क्योंकि साहस नहीं उसको पढ़ने के समझ नहीं, उसको खाली पूजा करते आरती
लोग कर रहे हैं ऐसे काम। ये प्रभुपाद की कृपा से हम भगवत गीता पे खाली पढ़ नहीं पा रहे हैं, चर्चा हो रही है, दिन भर चर्चा चल रही है। डिस्काउंट सेंटर में जाइए, अब दिन रात यही बात चल रही है, भावत कथा चल रही है। लोग जब मिलते हैं भावत भगवत गीता, उनके शब्दों में यही लिखता है, यही चल रहा है। ये प्रभुपाद की कृपा से। और कोई जिज्ञासा के विषय? हाँ, सॉरी, अनुमति बिल्कुल मांगे भगवान से हम लोग। अयोध्या में एक माता जी का वीडियो के माध्यम से सुना के कुंभ जा रहा है। हाँ, तो अभी मैंने अभी बता रहा हूँ, मैं भी वही आया थी पूरी से, तो पूरी से मुझे ज्ञात हुआ इस्कॉन पुणे की पूरी टीम जो है गौरांग प्रभु के डायरेक्शन में, योगी जी ने अपना स्वयं का जो स्थान था वहां पर उस मंदिर के प्रांगण में वो दिया है इस्कॉन को। और इस्कॉन पुणे और दिल्ली से कुछ भक्त मिल करके वो पूरा वहां पे जा करके और गौरांग प्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं। सबके लिए जितने लोग वहां पर आएंगे दर्शनार्थी, सबके लिए प्रसादन की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को अर्पित करके भगवान के राम के पुस्तकों को प्रसाद बांटा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी संस्था है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन सबको प्रसाद करते हैं, सकल प्रपंच जाए हमको पता नहीं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कभी हमको सिद्धांत समझ में आता है नहीं आता है, कभी हमारा ध्यान लगा है उसके लिए, लेकिन प्रसादन के समझ आगे है, क्योंकि सोते हुए आप तो जात के प्रसादन जो पार है, उस प्रसादन को कृष्ण प्रसाद है, वो कृष्ण से वो कैसे आपकी चेतना के ऊपर काम कर रहा है पता नहीं। और इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं हम सब। तो ये श्री प्रभुपाद जी का बड़ा महत्वपूर्ण एक अस्त्र प्रभुपाद जी ने दिया है, और उनकी संस्था में सब बात चाहती है इस्कॉन में हम किसी कभी सराहना सुधार नहीं कर पाए, बड़ा सा सिद्धांत है, बड़ा सही नहीं बोल पाए, फिर ये जरूर बोल पाएंगे। जैसे आपने किसान को गुणगान किया, आपकी सुकृति शुभ कि आपने भगवान से अभिन्न गुणगान किया, तो ये बहुत अच्छी आचार्य कृपा पार है। और इसीलिए योगी जी ने हम सबको ये तो जब भी हमें सूचना मिलेगी कि वहां पर ये प्रार्थना होगा, आगे हम कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। गीता में तो गीता का भी एक एक श्लोक का तो 4 चरण में तोड़ कर से गीता है। हाँ, उसको भी देखेंगे तो पूरा अपना विस्तार में दिया हुआ है। गीता के श्लोक बिल्कुल जैसे यही है, इसको अभी हमने गाया, 4 चरण में हमने इस श्लोक को 4 बार में गाया, मतलब एक वाक्य पहले बोले, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बार को छोड़ के ऐसे श्लोक बात करते तात्पर्य गीता के 720 तात्पर्य प्रभुपाद जी की पुस्तक में लिखा हुआ। इसी प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे जाने के पहले अंग्रेजी के लगभग 120 300 और सब मिलाकर के 720 अनुवाद उपलब्ध थे, लेकिन उन जो तात्पर्यों को पढ़ करके विशेष रूप से वो अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे, विदेशों में कोई एक गजल पर, इसीलिए जो प्रामाणिक संप्रदाय में आते हमें केवल तात्पर्य, जैसे कोई व्यक्ति हो सकती है, कोई संस्कृत का जानकार है, बहुत लोग संस्कृत जानकार शास्त्री या आचार्य की डिग्री प्राप्त करते संस्कृत विश्वविद्यालय से, तो कोई भी व्यक्ति इसका अनुवाद कर सकता, लेकिन वो अनुवाद हमारे हृदय में भगवान की भक्ति को जाते हैं। अगर वो वैष्णव की बड़ा सिर्फ आचार्यों अपना यथा